Kia ora, welcome to Inner Calling New Zealand, your spiritual podcast. If you are looking for peace, purpose of life, if you are looking for a spiritual guidance, if you are stuck with your many questions about spirituality, then this podcast is for you. Today we are having a very special guest who is by profession electrical engineer, and um, by profession he is engineer, but how he is leading into spirituality in New Zealand. So he learned a lot of spiritual techniques. We can include kriya yoga, sahaj yoga, hatha yoga, reiki, and pranic healing. So right now he is practicing healing in Auckland, New Zealand, and he is none other than Pavitra Roy. So I like to welcome Pavitra ji in our podcast Spiritual Healing. Welcome Pavitra ji. We are very blessed to have you in our podcast. It's a very special feeling to have you in our podcast. Today we are having this podcast in Hindi language, and we are also going to add subtitles and translate all the discussion we are having in English as well. So you can look into subtitles if you are not understanding Hindi language. So let's start our today's episode. I'm your host Kushali Jani. I'm from Guru Tattva Himalayan Meditation. I'm doing this meditation journey since childhood, and it completely changed my life. So I thought I can bring more speakers, more spiritual guider who can guide us and who can guide us through their spiritual journey, guide us through their enlightenment path, and we can learn more from them. Welcome Pavitra ji to our podcast. Atma Namaste. Namaste. ओके पवित्रा जी, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए कि आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे इन्वॉल्व हुए. व्हाट वाज दैट मिरेकल मोमेंट फॉर यू कि जिसने आपको पुश किया या ट्रिगर किया कि मुझे इसी पाथ में आगे जाना है, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा फिर आगे? बिल्कुल. मैं खुशहाली जी शुरू करने के पहले एक छोटा सा इन्वोकेशन प्रार्थना करता हूँ. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय. इसका माने तो आप लोग सब जानते ही हैं. डिवाइन गॉड हमको सच्चाई की तरफ ले जाए, अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए, और मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाए. तो ये जो है हमारा जो सनातन का है. इसके अलावा हम एक ग्रेट इन्वोकेशन भी करेंगे. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men, let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men, may divine love return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call race of men, let the plan of love and light walk out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. So be it, so be it, so be it. खुशहाली जी, ये एक तरह का हमारे लिए यात्रा ही है. मैं इस तरह के परिवार में पैदा हुआ था जहाँ लोग स्पिरिचुअल थे. लोग मानते थे कि स्पिरिचुअलिटी इज इम्पोर्टेंट, एक लाइफ का एस्पेक्ट है. तो बचपन से मुझे पाठ हो या कहीं उत्सव में जाना हो या कोई साधु संत से मिलना हो, चाहे वो किसी धर्म के भी हो, हम लोग एक परिवार में, हमें कोई इसमें किसी को एतराज नहीं था, हम लोग जाते थे. बट उस समय मेरे लिए सब कुछ मेरे माता पिता ही थे. तो मेरे माता जी पिताजी इन्होंने मुझे कुछ कुछ मंत्र सिखाए, जैसा मैं अभी असतो मा सद्गमय ये वाला किया, या त्वमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव. ये जो है माता जी से ही सिखाया, या गीता के कुछ जो मंत्र हैं या कुछ अध्याय का पाठ, ये सब चीज हमने अपने माता पिता जी थोड़ा सा ज्ञात हुआ. इसके अलावा कुछ बड़े बड़े जो साधु संत थे, फिलोसॉफी है, या चाहे कुछ उनके किताबें, वो समझ में तो नहीं आता था, लेकिन वो दे देते थे पढ़ने के लिए. मैं पढ़ता था, कुछ समझ में नहीं आता था. चाहे वो विवेकानंद का हो, चाहे अरविंदो का हो, चाहे योगानंद का हो, लेकिन ठीक है, रख देता था कहीं. मैं ये नहीं करता था.
रेलवे ट्रेन में जाते समय कुछ पढ़ा। तो इस तरह से मुझे एक मिला संस्पर्श। और इसके अलावा हमारे परिवार दीक्षा लिए हुए थे, तो दीक्षा में हमारे गुरुजी मोहनानंद ब्रह्मचारी जो बालानंद जी के शिष्य थे, और उनके गुरु ब्रह्मानंद जी जो नर्मदेश्वर गंगोनाथ बड़ौदा के पास है, वहाँ पे वो थे, और वो गायकवाड़ जी के भी परिवार के गुरु भी थे। तो उनका एक लिनिएज हम लोग को मिला। हालांकि मैं दीक्षा नहीं लिया था उस समय, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई करता था। मैं बोला कि अभी इतना जरूरी नहीं है। लेकिन वही जब हमारी शादी हुई उस समय माय वाइफ ऑल्सो, उनके घर वाले भी उसी लिनिएज से पता चला कि हैं, इसलिए हम लोग दोनों ने जाके साथ में वहाँ का एक मंत्र जो है हमारा दीक्षा मंत्र, तो दीक्षा हुआ। सो दैट्स आई थिंक इन 93। So nature also planned like this कि या नेचर ऑल्सो प्लान इसी मार्ग में आगे जाए। इसी मार्ग में आगे जाए। तो मैं बोला कि चलो ये एक मंत्र दीक्षा हुआ, तो वो सिद्ध मंत्र है उन गुरु लोग का, तो उनको करना है। और क्या क्यों करना है वो तो मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन हाँ बोले थे कि 3 बार जो है आपको त्रिसंध्या जिसको बोलते हैं वो आप करते रहो। तो मैं और मेरी जो धर्म पत्नी है, हम लोग दोनों मिलके वो स्टार्ट किया। ठीक है, जिंदगी ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक बार किसी ने मुझे बताया कि रेकी का बहुत हो रहा है, जो इससे हीलिंग हो सकता है। अच्छा। तो इसके बारे में मैं बॉम्बे में था उस समय, तो बॉम्बे में किसी ने बताया। तो मैं बोला कि इंटरेस्ट तो आया, लेकिन बोला कि मैं अपने गुरुजी के परमिशन के बगैर क्या चीज़ है नहीं। तो मैं गुरुजी को एक चिट्ठी लिखा, जो ऐसा ऐसा चीज़ मुझे पता चला है, आपका आज्ञा हो तो क्या मैं ले सकता हूँ। दोनों गुरुजी ने मुझे चिट्ठी में लिख के बताया कहाँ। मतलब अपने गुरु आज्ञा से इस हाँ, मार्ग में तो आ गए। वो गुरु आज्ञा से मैं इस मार्ग में आया कि मैं रेकी का, और जो रेकी के हमारे गुरु थे वो क्रिश्चियन थे, मार्टिन नाजोरेथ। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे ये दिया, उसको बोलते हैं अट्यूनमेंट रेकी में। तो इस तरह से रेकी के धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया जर्नी। उसमें काफ़ी अच्छा मुझे फल मिला। इसके अलावा हम चूंकि मेरे पिताजी जो थे वो बंगाल और बिहार के एरिया में काम करते थे, तो हमारा एक मुंगेर का आपने नाम सुना होगा, एक जगह है जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा योगा इंस्टीट्यूट है। हाँ, तो वहाँ के कुछ लोगों के साथ मेरा जान पहचान हुआ, तो एक्चुअली थ्रू मेरे पिताजी। तो उन्होंने आके घर में हमें योगा सिखाने लगे कि हठ योगा थोड़ा सीखो, आसन खासकर प्राणायाम आसन। उसके बाद थोड़ा आहार विहार आचार विचार इसके बारे में बातचीत होती थी। ध्यान के बारे में ज्यादा नहीं बोलते थे वो लोग, क्योंकि हम लोग तब स्कूल में थे। तो बोले कि ये कम से कम करो, हेल्थ ठीक रखो अपना। तो वो हमने स्टार्ट किया। लेकिन वो शायद मेरा वो आपको बॉडीली पहले फिट करके जी जी फिर ध्यान के लिए रेडी कर, क्योंकि साधना के लिए बॉडी तो फिट होना चाहिए, बिल्कुल तो फिट ही होना हम चाहिए। बेस्ट बैठ सकते हैं बिल्कुल ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम करते थे, लेकिन उसके अलावा खेल कूद तो रहता था ना, क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल। तो ये सब खेल कूद के चक्कर में वो उसमें मिनिमम टाइम होता था, लेकिन करना पड़ता था, क्योंकि अब वो रूटीन बना था, सब कोई कर रहे हैं बैठ के कपाल भाती और वो जो भी है आपके जो सिंपल वज्रासन हुआ या वो सब हमारे लिए, गोमुखासन, दिस वेर लाइक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग को बोले थे कि ये सब करो। हम मयूरासन भी करते थे उस समय। इसके अलावा प्राणायाम, तो प्राणायाम में आपका जो भी है अग्निसार हुआ या कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब हमारा नौली वगैरह भी किए थे, भस्त्रिका। लेकिन हम लोग आगे ज़्यादा उसमें कॉलेज में हॉस्टल में मैं रहा इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ लोग फिर जिम में आ गए। पैरेलल बार और वो क्या नाम है अपना हॉरिजॉन्टल, वो सब में चलने लगा। तो ज़्यादा कुछ योगा आगे बढ़ा नहीं हुआ इस कॉलेज लाइफ में, ज़्यादा नहीं हुआ। वो स्कूल लाइफ में तक थी। लेकिन मैं जब बॉम्बे आया तो हम निकम गुरुजी काम के सिलसिले में हम वहीं थे, करीब 13 साल उधर रहा हूँ। तो अचानक मुझे निकम गुरु जी के साथ जान पहचान हुई, और मैं और मेरे वाइफ दोनों ने बोला कि हम लोग कुछ करते हैं, ये चीज ऐसा छोड़ देना ठीक नहीं है। बाय द वे माय वाइफ आल्सो लर्न बिट ऑफ योगा इन हाँ। कलकत्ता।
तो बॉम्बे में आके हमने और हमारे कुछ मित्र के परिवार लोग एक साथ मिलके जाने लगे वहाँ। एंड वी गॉट अगेन रिवाइव दैट योगा इंक्विजिटिवनेस, एंड हमारा जो जर्नी का जो एक ये था वो फिर से चालू हो गया बॉम्बे अच्छा में। है। यहाँ तक कि मैं जब न्यूजीलैंड आ रहा था, उन लोगों को बोला कि अब तुम्हें अब तो हम सीखे हैं, तो बोला इंस्ट्रक्टर बनो, वहाँ न्यूजीलैंड में सिखाओ। हाँ। लेकिन मुझे कुछ थोड़ा शाई कि यहाँ मैं कैसे बोलूँ लोगों को योगा के बारे में। आज से 27 साल बारे में लोगों को उतना ज़्यादा ये नहीं था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ कुछ कर नहीं सका। मतलब अपने को छोड़कर अपने और कुछ मित्र लोग के साथ हमने किया प्रैक्टिस, बट इस चीज को मैं आई एम सॉरी दैट बाद में लोगों को बहुत कुछ पता चला योगा के बारे में, बट हमने आसन योगा के बारे में कुछ ज्यादा यहाँ नहीं कर पाया। तो अपने लिए रेकी, योगा, दीक्षा ये सब चालू ही था। इस बीच मेरे माता जी प्राणिक हीलिंग सीखी थी, उन्होंने बोला कि तू प्राणिक हीलिंग भी सीख, अच्छा चीज है। मैं बोला मैं इतना चीज सीख के क्या करूंगा, यही नहीं समझ हो रहा है, टाइम अपने पास कहाँ है। काम के सिलसिले में मेरे को छुट्टी तक नहीं मिलता था, प्रोजेक्ट्स इतने थे, तो मैं बहुत दिन तक टाला। लेकिन माँ बार बार याद दिलाती है, तो मैं बोला अच्छा चलो ठीक है। मुझे पता चला कि मेलबर्न में हमारे गुरुजी प्राणिक हीलिंग के मास्टर चुआ कुक्सुई आते हैं, और वहाँ डॉक्टर हेजल जो है वो यहाँ एक बार आए घूमने के लिए। उन्होंने बोला आप जरूर आओ वहाँ और कुछ सीख लो। तो मैंने कुछ कोर्सेज करके वहाँ पे जब पहुंचा तो आई वॉज जस्ट क्या मैं बोलूँ, मुझे लगा कि ये साइंटिफिकली, अब तक मुझे कुछ साइंटिफिक बेसिस नहीं पता चल रहा था प्राणिक हीलिंग में, क्योंकि वो खुद इंजीनियर थे। उनके टर्म्स जो थे वो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, साइंटिफिक थे। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और इसके चलते मैंने एक के बाद एक जितने भी कोर्सेज हैं कंप्लीट किया। मैं जाने आने, होटल में रहने, और इसमें काफ़ी खर्चे हुए बिलीव, लेकिन मैं एक तरह से, मैं क्या बोलूँ, आई गॉट टोटली इन्फ्लुएंस, आई मीन इन ए गुड वे। उनका एक प्रभाव आया, वो जो कि मैं ना जान के कर रहा था, वो मुझे जानने का मौका उनसे मिला। वो आपको आपकी सोल ने गाइड किया जी कि हाँ, और अट्रैक्ट भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। व्हेन यू डोंट नो कि हम क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल वो शायद आत्मा की आवाज हो आत्मा सकती की आवाज को सुना हाँ। मैं, और उन्होंने बताया कि पहला बार उन्होंने हमें क्लियरली बता, सोल रियलाइजेशन करके एक उनका कोर्स है, जिसमें अच्छा। उन्होंने सोल के बारे में बताया कि आखिर होता क्या। आप तो जानते हो लोग के बारे में हमेशा बात करते हैं लोग, हाँ, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, सब चीज के बारे में, लेकिन है क्या ये ना। तो इसके बारे में उनका क्या था, प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल का मतलब है खाली थ्योरी नहीं। हाँ। वो थ्योरी में ज्यादा बिलीव नहीं करते। एक तो उनका फिलिपिनो एक्सेंट है, फिलीपींस के थे, हाँ। तो उनका ये वो जो भी करते थे करके दिखाते थे, और बोलते थे कि ये मैजिक नहीं है, ये सिंपल चीज है, आप करो, आप भी करो 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 करो। तो मैंने वो एक सेकंड बैठने नहीं देते थे। तो और उसमें उनका कुछ अलग कुछ एक्सरसाइज भी था, which are not asanas but very similar to asanas, because they are all related to the energy centers और चक्रास जो भी है। तो वो भी मुझे प्रभावित किया। मैं बोला वाह, ये तो बढ़िया चीज है। तो मैंने एक के बाद एक कोर्स किया। फिर उन्होंने हमें एराटिक योगा जो है वो उसको सिखाना स्टार्ट किया। मैं एराटिक प्रिपरेटरी 1, 2 और 3rd तक मैं एराटिक लेवल पे किया। जैसा हमारा क्रिया योग का है या सहज योग जो है, इसी तरह एराटिक योग टिबेटियन श्लोक का सिस्टम है। थोड़ा सा अलग है टेक्निक, लेकिन वो हमेशा वही चीज से करते हैं, मैंने कनेक्शन जो हमारे चक्रस के को बैलेंस, इंटीग्रेटेड, अलाइन करने में सहायक हो। तो वो भी एक अलग मुझे रास्ता दिखने को मिला कि ये भी एक तरीका हो सकता है, एक तरीका है। और लोगों को जैसे मिलेरप्पा है या पद्म संभवा, बुद्ध लिनिएज के, ये लोग सब एनलाइटेंड हुए थे। तो इनके गुरुजी भी जो है पद्म संभवा गुरुजी मेलिंग है, बहुत पावरफुल गुरु। और हमारे इंडिया के आपके हिमाचल प्रदेश
में रहते थे, क्योंकि तिब्बत का कुछ पार्ट हिमाचल एरिया में भी आता था और अभी वहाँ एग्जाइल में है सब लोग। हाँ। तो एक समय वहाँ जाना आना, इंडिया और तिब्बत एक वेरी वेल कनेक्टेड था। तो एक नया चीज पता लगा। इसी तरह हमारा प्राणिक हीलिंग के अलावा भी क्रिया योग का एक कनेक्शन रहा, क्योंकि मुझे तो हमेशा इंटरेस्ट था क्रिया योग, राज योग के बारे में। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा इस पे हम कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा मिला एक साधु संत जो चेयरमैन ऑफ गंगोनाथ ट्रस्ट थे। वो बोले कि आप मेरे को प्राणिक हीलिंग सिखाओ, क्योंकि बाय दैट टाइम आई वाज टीचिंग। तो बोला और मैं आपको क्रिया देता हूँ। बोला बड़ा बढ़िया है। हाँ, खाली आप आके आ जाओ फ्लाई करके बस। मैं बोला ठीक है, दैट इज अ वेरी नॉमिनल एक्सपेंस। हाँ बिल्कुल। तो मैं बोला कि चलो जाके वहाँ मैं रहा। मैं काफ़ी लोगों को प्राणिक हीलिंग सिखाया। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो लर्न क्रिया एंड आई प्रैक्टिस दैट। एक साथ नहीं करता हूँ, लेकिन अलग अलग से करता हूँ। एंड इस तरह से मेरा वहाँ ज्ञात हुआ, और वहाँ से मुझे उनको रेफर किया कि एक बहुत बड़े साधक हैं जो जिनको दर्शन मिला है दत्तात्रेय जी की। अच्छा। हाँ, तो ये 75 में उनको दर्शन मिला है, और वो बहुत पावरफुल गुरु है, लेकिन वो गिरनार में रहते हैं, बड़ौदा से दूर है। मैं बोला अभी तो मेरे वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं फिर कभी उनसे रूबरू होने का कोशिश करूंगा जब। तो ऐसा बहुत जल्दी ही मुझे टाइम मिल गया। वो मुझे डायरेक्टली वहां से फोन किया, बोला कि उनके एक और हैं जिनको शैलजा माता जी बोलते हैं वहाँ, वो बापू श्री के ही धर्मपत्नी है। उन्होंने बोला कि आप आके यहाँ लोगों को सिखाओ, और आप भी कुछ यहाँ देखो क्या चीज़ है यहाँ। मैं अपने को फिर रोक नहीं पाया। मैं बोला चलो ठीक है, चलते हैं। एंड दे ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग फॉर मी। तो जैसे गुजरात में लोग काफ़ी क्या मैं बोलूँ, अतिथि वेलकमिंग होते हैं। हाँ, तो मैं भाव होता है। भाव होते हैं। तो मैं राजकोट से वहाँ तक गया, फिर वहाँ से 1 महीना के करीब वहाँ आश्रम में रहा। तो वहाँ बापू श्री से मिलने का भी मुझे मौका मिला, और वो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे ऐसे चीज़ दिखाए जो मैं यहाँ बोल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इट वाज वेरी आई ओपनिंग एंड इट इज़ वेरी अलाइंड विथ व्हाट वी हैव बीन लर्निंग। तो उन्होंने खुद आके जो लोग हमसे प्राणिक हीलिंग सीखे उनको सर्टिफाई किया। बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और बोले कि आप नेक्स्ट जो कुंभ हो रहा है 2019 में, आप आइए वहाँ हमारे आश्रम में रहिए। मैंने उनका जो जूनागढ़ का कुंभ, जूनागढ़ का नहीं, उसको बोलते हैं जूना अखाड़ा। तो उस अखाड़े में हमें वहाँ रहने का मौका मिला। फिर वहाँ की जूना अखाड़े के हेड जो अवधेशानंद जी हैं, उनके साथ भी मिलने का मौका मिला। सब चीज़ बहुत आसानी से हुआ। और वहाँ के कुंभ में मेला में जो साधु हैं उन लोगों को हीलिंग करने का मौका मिला, क्योंकि वो कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दी इतना ठंडा होता है, उसके बाद रोज नहाना ये वो। तो आके वो लोग सब लेते थे। दैट वाज ए अमेजिंग एक्सपीरियंस। और वो लोग हमसे इंटरेक्ट करते थे, ये तो हमारा साइंस है, आप लोग वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूजीलैंड में। नहीं, यहीं से सीखे हैं। लेकिन प्रैक्टिस हर जगह कर सकते हैं वर्ल्ड में, कहीं भी तो रोक टोक नहीं है इसका। एनर्जी इज एनर्जी एवरीवेयर इट इज। तो इस तरह से हमारा जो है जर्नी एक के बाद एक अपने आप ओपन होते चला गया। एंड बट इस सब चीज के बीच में मुझे प्राणिक हीलिंग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित किया लाइफ में। बाद बाकी सब चीज भी अपने आप में ठीक है, बट ये चीज इसलिए मैं अपने को मानता हूं कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया है कि एनीवन विद इज वेस्टर्नर हो या एशियन हो, या क्योंकि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता हूँ एंड मैं लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, तो सबको समझ में आ जाता है। उसका क्योंकि रीजन उसमें एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट भी होता प्रैक्टिकल्स होते हैं, एंड लोग प्रैक्टिकल से ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं रादर देन फिलोसॉफी से। सो हाँ, हमारा गुरुदेव का भी सेम है। वो बोलते कि अभी के जमाने में अगर हम युवा या बच्चों को बोलेंगे अरे ये भगवान की मूर्ति है, यहाँ पे माथा टेको, यहाँ पे वो मिलेगी, तो वो बच्चा बोलेंगे कहाँ भगवान है, दिखाओ हमें, पहले प्रैक्टिकल करके दिखाओ। सो वही है कि हमारा मेडिटेशन टेक्निक भी अनुभूति के ऊपर ही आधारित है।
वंस यू फील इट, वंस यू एक्सपीरियंस इट, इफ यू लाइक इट, इफ यू फील गुड, कंटिन्यू करो। बिल्कुल तो वही चीज सेम है वही यहाँ चीज पे है, भी। वही चीज है। इसीलिए देखिए, मैं किसी के भी बारे में मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि उनका थ्योरी जो है मुझे समझ में उस वक्त नहीं था समझने का। जब मैं स्कूल कॉलेज में था मेरे लिए वो समझ की बाहर थी। लेकिन वही बुक मैं फिर अभी पढ़ रहा हूँ तो मैंने दाल भात जिसको बोलते हैं आसान हो गया अभी समझने में। वही आज जो अभी इजीली समझ में आता है। हाँ। क्यों? जब तक मैं प्राणी किलिंग नहीं सीखा तब वो मुझे लगता था कि थोड़ी देर में नींद आ जाती थी नींद आ पढ़ते जाती। पढ़ते। लेकिन अभी मुझे समझ में आता है तो मैं पढ़ के पूरा कंप्लीट कर पाता हूँ। तो जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं ये उपलब्धि पहले नहीं कोशिश किया था लेकिन अब समझ में आया, पहले नहीं आया। तो टाइम का भी एक होता है और कुछ हद तक गुरु का भी साथ होना चाहिए। तो मेरे तो आई एम वेरी लकी टू हैव वेरी इंटरेस्टिंग एनलाइटेंड पर्सन इन माय लाइफ कि जिन्होंने मुझे रास्ता या राह दिखाया। तो इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत कम, छोटा सा चीज है, ऐसा नहीं। मैं एक्चुअली समर्पित हूँ उनके लिए। जो भी चीज मैं सरेंडर करता हूँ इन गुरुओं के साथ मिलने का मुझे। और इसके अलावा मैं अपने माता पिता या हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी मैं बहुत सम्मान के साथ एक्सेप्ट करता हूँ कि वो अगर हमको नहीं दिखाते पहले तो शायद मेरा लाइन उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो कुछ तो उन्होंने प्रभाव डाला है। और ऐसा भी होता है कि अगर आप बिलीव करते हो कि कर्मा या जो भी रीबर्थ होते हैं तो पास्ट लाइफ में भी हमारा वो जर्नी ही रहा होगा साधना वाला। और इस लाइफ में इसीलिए हमने ये पेरेंट्स को चूज किया कि जो हमें इसी मार्ग में आगे पुश कर सके, इसी मार्ग में आगे गाइड कर सके। और वहां से हमारा जर्नी फिर से कंटिन्यू हुआ। सो ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमारी आत्मा ने ये बॉडी चूज किया और ये पेरेंट्स चूज किए। और हमें पता था कि ये गुरु आगे जाके हमें मिलने वाले हैं। तो ये भी एक या ऐसा ही बोलते हैं हमारे इसमें कि जो देखिए मैंने भी कुछ थोड़ा सा कोशिश किया अपना रिग्रेशन या इसमें जाके ये करने का। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सोल भी काफी पुराना है, कई बार आ चुके हैं, कई कई अलग अलग रिलीजन के साथ मेरा रिश्ता रहा है, इंक्लूडिंग टिबेटियन सिस्टम में भी रहा है, एज ए सनातनी भी रहा है। हाँ, थोड़ा सा मुझे जो अनुभूति हुआ है करीब 800-900 साल पुराना तो होगा आसानी से, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कुछ चीज मुझे इसीलिए मुझे फिर बाद में हर चीज बहुत आसानी से समझ में आने लगी। हाँ, पहले थोड़ा सा जिस चीज में मुझे एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा पास्ट में उसमें थोड़ा देरी लगा। लेकिन जिसमें एक्सपीरियंस था वो बड़ा आसानी से समझ में आया। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हाँ, हमने कोई ना कोई कारण से किसी को चूज इसीलिए किया कि इस जर्नी में मुझे ये भी समझना है और इसको एक साथ लेके देखना है। तो अल्टीमेटली मुझे जो समझ में आया कि जो फिलोसॉफिकली जो वेदांत का फिलोसॉफी है, यानी वेदांत इज टॉकिंग अबाउट नॉन डुअलिटी इज द एंड, अंतिम जो है। लेकिन वहाँ हर एक फिलोसॉफी आता है जिस फिलोसॉफी को हम ये भी बोलते हैं हिंदी या संस्कृत में हम उसको बोलते हैं दर्शन, है ना। दर्शन मतलब तो बहुत सारे दर्शन है, 6 दर्शन है जिसको लोगों ने मान्यता दिया है, जिसमें पातंजलि योग भी है, सांख्य योग भी है, बहुत सारे हैं, और मीमांसा योग, बहुत सारे हैं। उसमें से अंत में लोगों ने जब सब, जिसमें कुछ लोग भगवान को नहीं भी मानते, वो भी उसको भी वेदांत में, उसको भी दर्शन में रखा गया है। लेकिन दर्शन के अंत में जो वेदांत में है उसको मास्टर ने एक बुक लिखा है, उसका नाम है
एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज सेल्फ एविडेंट। हाँ, और बहुत आसान है, एक बच्चा भी पढ़ सकता है उसको। तो उसका वेदांत का भी फिलोसफी है, अंत में उन्होंने प्रूफ किया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग सुप्रीम हैज टू बी देयर, विदाउट दैट वो करना बड़ा मुश्किल है, प्रूफ करना। लेकिन चार चीज फिलोसफी जो है वो सब मानते हैं। जो एक है सच, हर चीज में सच का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ट्रूथ, जिसको आप देख रहे हो, तो हम खुशहाली को कैसे बोले नहीं ये खुशहाली नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। जिसको हमने दर्शन देखा वो उसको हम मान लेते हैं। हाँ। दूसरा चीज है, किसी को हम दर्शन शायद नहीं हुआ लेकिन धुआं है तो वहां आग हो सकता है। ये इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसको एक तरह का हमने एक दिया कि एक इसको हम बोलते हैं अनुमान। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं इट्स अनुमान नहीं है लेकिन ऐसा ही चीज है जो पहले हमने देखा था, तो ये भी ऐसा है, तो कंपेयर करते हैं उसको। हाँ, तो कंपैरिजन में हम उसको बोलते हैं कि हो सकता है ये भी है। तो ये इसको थर्ड बोलते हैं, जिसको उपमान बोलते हैं या कुछ और नाम है, जिसको कंपेरेटिव हाइपोथेसिस, जो उसमें दो हाइपोथेसिस को मिला के देखते हैं। और फाइनल जो है, फोर्थ जो है, जो सब मानते हैं, वो है कि उसको बोलते हैं वर्ड। वर्ड बोलते हैं या शब्द। शब्द का मतलब है कोई ज्ञानी गुणी लोग जो है जिनको बोला है वो चीज को लोग अक्सर मान लेते हैं, ये समझ के मान लेते हैं कि शायद वो कहीं ना कहीं इसके पीछे उनका कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स रहा होगा। जैसे अभी न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में बोला है, तो आप उसको फिर से नहीं प्रूव करने जाते हो, एक्सपेरिमेंट नहीं करने जाते हो, आप मान लेते हो कि वो है। तो ये होते, तो कुछ ज्ञानी गुणी या अनलाइटन जिसको बोलते हैं ना, उस तरह के जो लोगों का बोला हुआ विचार जो है, हम अक्सर उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करते, मान के चलते, वहां से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो एक लाइफ उसमें गुजार दो, दिक्कत नहीं है, लेकिन अक्सर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिज्ञासु लोग एक्सपेरिमेंट तो करेंगे, दिक्कत नहीं है उसमें, वो साइंटिफिक बेसिस है। और साइंस और स्पिरिचुअल साइंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा है। तो यहाँ तक षड दर्शन में जो ये चार जो पॉइंट सभी मानते हैं, उसके बाद फिर वेदांत के ऊपर लोग काम किया है, जिसमें आप बहुत सारे अद्वैत हैं, द्वैत हैं, द्वैत अद्वैत, ऐसा करके 12 डिफरेंट ये है। तो फिर शंकराचार्य का भी अद्वैत है। दोनों में डुअलिटी एंड नॉन डुअलिटी के ऊपर उन्होंने विचार किया है, माना अंत में क्या है। तो अंत में जो है वो उसको बोलते कि ना, तो अच्छा यही चीज फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में अभी लोग मानते हैं, क्योंकि डुअलिटी में अभी वेव एंड आपका जो मटेरियल या आप जिसको बोलते हैं पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल, दोनों का इंपॉर्टेंस है। अब पार्टिकल को अगर नहीं दिख रहे हैं तो वेव दिख रहा है, और जब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको पार्टिकल दिख रहा है। हालांकि दोनों चीज एक ही चीज से है, एनर्जी से। तो अभी ये अंत में ये प्रूव होता है कि दोनों का बेसिस एक ही है, चाहे हम उसको देख किस तरह से रहे हैं, या उसको हम कैसे फील कर रहे हैं, या हमारी कैपेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर है। तो उसको उन्होंने थियोरेटिकली भी प्रूफ किया और दर्शन से भी प्रूफ किया। तो उन्होंने ये किया कि अंत हमारा जो है, जो बोलते हैं हम लोग लिबरेशन या मुक्ति या मर्जिंग विद द सुप्रीम एनर्जी, इसका मतलब हाँ परमात्मा या परम ब्रह्म से जो मिलन है, ये बेसिकली वी आर मर्जिंग इनटू समथिंग विच इज नथिंग। नथिंगनेस बोलते हैं उसको। और नथिंगनेस, तो आप ऐसा मत समझो कि जीरो का मतलब कुछ नहीं। जीरो का मतलब हमारे लिए लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन मेटाफिजिक्स में या स्पिरिचुअलिटी में मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और वो जीरो का मतलब बहुत कुछ होता है, उससे सब कुछ हो सकता है। वहीं से सब कुछ शुरू होता है, वहीं सब कुछ खत्म होता है। और वो उसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा इल्यूशन जो है, माया जिसको बोलते हैं, वो ये है टाइम। ये है ही नहीं कुछ। जिस टाइम के बारे में अगर हम समझ में आ जाए कि ये टाइम है नहीं कुछ, तो हम जीवन मुक्त हो, मैंने इसी जीवन में मुक्ति हो सकती है।
लेकिन हम टाइम ऐसा को मरने के बाद वो मुक्त हो गए या ऐसा नहीं? नहीं, जीवन मुक्त करके एक वर्ड है। इसी जीवन में आप ऐसे ही रहते रहते मुक्त हो सकते हो, लेकिन आपको वो क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद आना चाहिए कि कैसे टाइम का कोई मीनिंग नहीं है। हालांकि टाइम का मीनिंग तो जिंदगी में या जड़ जीवन में है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि, लेकिन वो जब तक उससे जुड़े हुए हैं हम माया में कनेक्टेड है कि नहीं। तो जड़ जीवन से मुक्त होने के पश्चात हमको समझ में आएगा कि ये स्पेस भी हमारा बनाया हुआ है, टाइम भी हमारा, सब सहूलियत के लिए बनाया हुआ है। ये इसलिए फिजिक्स में भी बोलते हैं कोई चीज अगर नित्य है, कॉन्टिन्यूअस है, तो उसको आप मान सकते हो फिजिक्स में। इन फिजिकल वर्ल्ड ये सब फिजिकल वर्ल्ड के लिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का साइंस थोड़ा सा अलग हो जाता है कि नहीं। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ का 24 आवर्स आपका पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहर आप जाओ, वहां फिर 24 आवर्स का कोई कुछ नहीं है, वैल्यू नहीं रहता है कि नहीं। फिर आप उसके बाद सोलर सिस्टम के बाहर जाएंगे, वहां भी अलग हो जाएगा। तो हर जगह अगर टाइम का ये हो, यही फॉर क्वांटम फिजिक्स को आपको मानना ही पड़ेगा। वो उनको बोलते हैं कि फिर क्या है ना। हर जगह का इक्वेशंस जो है, उन्होंने 4 अलग अलग थ्योरी भी दिया है ना, जिसको इन्होंने वीक मॉलिकुलर फोर्स और स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स, या आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स, ये 4 को उन्होंने किसी तरह इक्वेशन एक नहीं कर पाए, स्ट्रगल किया। एक तरह से इसको अगर मिला दे, एक कर दे, नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं माया का चक्कर है, इन ए वे, नॉट इन इन ए रियल सेंस, बट कहीं ना कहीं वहां पर कुछ चीज जो है हमारा मिसिंग है, उसको हम देख नहीं सकते हैं या उसको हम फील नहीं कर सकते। उसके लिए जो दृष्टिकोण है वो इस जड़ दृष्टि से नहीं होगा, उसको आपको अलग इंट्यूटिव नॉलेज है वो डेवलप करना पड़ेगा। और जिनको वो मिल गया वो आपको बता नहीं पाएंगे क्योंकि आप वो देख नहीं पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए वो एनलाइटेंड लोग को दिख तो जाता है, लेकिन वो बोलते हैं कि इसको मैं कैसे 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 नीचे लाके लोगों को समझाने लायक बनाऊं, so that they can understand. So anyway, coming back to प्राणिक हीलिंग, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, बहुत हद तक बहुत सारे सवाल के जवाब आ जाते हैं, क्योंकि हम कुछ इंट्यूशन हमारे पास जो है जन्म से, उसको हमने यूज ही नहीं किया। उसका कारण ये है कि हमारे जो मैं बोला वो परिवार का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम परिवार में शुरू से क्या करते हैं, वी ट्राई एंड सी कि ये बच्चा बड़ा होके नौकरी कर ले, फिर शादी कर ले, और किसी तरह फैमिली प्लान हो गया, फिर आपका करियर हो गया। फिर अभी आप सोचिए, अब शुरू से ही सोच लिया कि ये हमारे फैमिली है। लेकिन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर को मुझे हमने यहाँ क्या हिंदी में जो साधना, साधक जो साधक है, वो उसके लिए ये परिवार को मतलब, इसको आप प्रिजन में डाल दिया बंद करके, उसका परिवार तो पूरा वर्ल्ड है ना, उसको हम कैसे इस घर में बंद करके रख दिया। नहीं नहीं, तेरा ये है वो है, ये फिजिकली करेक्ट है, लेकिन आप जब स्पिरिचुअली सोचेंगे तो आपका पूरा दुनिया परिवार है। हम क्यों इतने लोगों की भला, मैं क्यों नहीं और लोगों को भला करूं? ये मानसिकता जो है ये आपके अंदर एक झटके में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर वो तो साधक से संन्यास होने में टाइम नहीं लगता है। और आज के डेट में संन्यास होने की भी जरूरत नहीं, गृह संन्यास भी हो सकता है। गृह सन्यासी का मतलब ही है कि आप घर में रह के आप वही चीज करो, आप बाहर में रह के वही चीज करो जो आप घर में करते हो। अगर आप घर के लोगों को खाना खिलाओ तो बाहर के लोगों को, बाहर और घर क्या है, एक ही है। मतलब सब छोड़ के हिमालय जाके या जंगल में जाके साधु बनने की भी जरूरत नहीं है। वो घर में रह के, परिवार में रह के, सबके साथ रह के, पर सबके साथ नहीं रहना। वो आप डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट के बारे में आ गए। हाँ, डिटैच्ड हो जाना जो है,
मैं कल बैठ के जब ध्यान कर रहा था, मुझे एक बड़ा अंदर से कभी कभी वो आता है ना, तो मुझे एक चीज का याद है, मैं कहीं लिख के भी रखा। जब आप कोई चीज क्रिएट करते हो ना, जब कोई चीज आप क्रिएट करते हो तो आपके अंदर एक अटैचमेंट आता है। आता है कि नहीं? बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात है, बिना अटैचमेंट का आप क्रिएट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? ये बहुत चक्कर वाला बात है। जैसे ही क्रिएट किया, चाहे आप खाना बनाओ चाहे चाय बनाओ, ये मैंने बनाया है, लगता है ना एक अटैचमेंट। सिमिलरली अब अगर अटैच नहीं हो, आपको अगर चाय बनाने का मन ही नहीं है, कैसे आप बनाएंगे? एक सिंपल ये मैं बोल रहा हूँ। सिमिलरली एक आप पेड़ लगाते हो तो अटैचमेंट होता है कि इसमें कब फल आएगा, फिर वो पेड़ का फल आपको पसंद है, उससे अटैच हो, तभी तो आप वो पेड़ लगा रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अटैचमेंट का जहां तक सवाल है, ये जो है, इससे डिटैच होना जो है, इसकी मानसिकता आसान है बताना, लेकिन इसको करना आसान नहीं है। उसका रीजन ये है कि आप जैसे ही डिटैच होना चाहोगे, माया जो है, जिसको हम मैट्रिक्स जो भी बोलते हैं, वो आपको खींच के लाएगा वहां। सही है। वही वही तो जड़ है कि इस सब के पीछे हम क्यों अभी तक इधर फंसे हुए। माया। हाँ, वो जरूरी भी है। जड़ जीवन के लिए माया जरूरी है, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लोगों को फिर सब अलग अलग घूमेंगे तो फिर वो नहीं, वो भी जरूरत है। क्रिएशन इज ए कंटिन्यूअस थिंग, नो? तो क्रिएशन के लिए माया जरूरी है। बट अगर आप जान लो कि जैसे पेड़ है, आप देखो पेड़ में फल उगते हैं, आप नेचर से सीखो, पेड़ एक भी फल नहीं खाता है। यू एग्री विथ मी? यस। तो ये किस तरह का, लेकिन वो सब फल को पूरा न्यूट्रिशन देता है वो, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि। तो एक तरह से ये डिटैच्ड है, वो अपने आप गिर जाता है फल, अगर कोई यूज नहीं किया। और कोई ले भी गया उससे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये स्टिल अपना रोज फूल देगा, रोज फल देगा। ये कहाँ से होता है? ये इससे हमको यूनिवर्स से सीखने का आवश्यकता है। ये कैसे होता है? ये हो गया आपका डिटैच्ड अटैचमेंट है, बट डिटैच्ड अटैचमेंट है ना? इसमें भी चार, ये अटैच्ड अटैचमेंट, अटैच्ड डिटैचमेंट, फिर आपको बाद में जाके डिटैच्ड अटैचमेंट एंड डिटैच्ड डिटैचमेंट, मतलब एकदम डिटैच्ड हो गया, जो सन्यासी वाला हो गया, हमको कुछ लेना देना नहीं। तो एक स्तर है, एक एक करके होता है ना? और सबसे बड़ी बात है, ये हमको जो अवॉइड करना चाहिए, अटैचमेंट तो होगा, दिक्कत नहीं है, अटैच रहना ही चाहिए ना। नहीं अटैचमेंट होगा तो आप परवरिश कैसे करेंगे बच्चे का? वो तो दिया गया है अंदर से ऊपर वाले का, वो अपना हार्मोनल ये होता है कि उसको करना ही है, उसको वो शक्ति है। बट कहाँ फंस जाते हैं लोग? आई विल टेल यू, इट्स नॉट अटैचमेंट, इट इज कॉल्ड एंटेंगलमेंट। अच्छा, और वो क्या डिफरेंस है? एंटेंगलमेंट एक तरह का प्रोग्राम्ड अटैचमेंट होता है। वो आप फंस गए। और उसका मेन कारण यह है कि हम कभी कभी सच को नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। जैसे ही आप झूठ का सहारा लिया, आप फंसते चले गए, एक के बाद एक आपको झूठ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको छुपाना है ना। तो हम प्राणिक हीलिंग में सबसे पहला स्टेज है अपना, जो देर आर, जैसे हम यम नियम करते हैं ना, यम नियम, अष्टांग योग में ये सब प्रत्याहार, ये है ना आपका। तो आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि तो लास्ट 5 है, लेकिन इसमें आपका यम नियम और प्रत्याहार, ये अपरिग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको आप छोड़ नहीं सकते। प्राणिक हीलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग हीलिंग सीख के चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम हीलिंग करते जाएंगे। नहीं, आप अगर कंटिन्यूअसली झूठ बोलेंगे, कंटिन्यूअसली गाली गलौज करें, हीलिंग नहीं होगा आपसे, क्योंकि हीलिंग का मतलब है हर्टिंग नहीं होता है। अगर आप कंटिन्यूअसली हर्ट करते हो, हील कैसे करेंगे? सही है। तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, जिस चीज को हम लोग को थियोरिटिकली नहीं, प्रैक्टिकली करना पड़ता है। बट देयर आर वेज हाउ टू गेट रीड ऑफ दोज हैबिट्स। हैबिट को हम चेंज कर सकते हैं।
अच्छा। हाँ। आपसे कोई सीखना चाहता है या कोई हील करना चाहता है तो आपको कांटेक्ट करने के लिए जी हाँ, अगर मुझसे कोई हीलिंग सीखना चाहे या अगर जानना भी चाहे या मेडिटेशन में ज्वाइन होना चाहे तो मुझे 02144516 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या एक मेल भी छोड़ सकते हैं info@pavitraयोग.com। मैं यहाँ न्यूजीलैंड प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन को अभी चेयर कर रहा हूँ और यहाँ हम रेगुलर मेडिटेशन भी करते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं, रिट्रीट भी करते हैं। जानकारी के लिए कभी भी कांटेक्ट कीजिए। और खुशहाली जी तो है ये हमारे साथ में जुड़े हैं, इनसे भी आप बात कर सकते हैं एंड कोशिश करेंगे आपका जितना जिज्ञासा है उसको हम उत्तर दे सके थ्रू वॉट एवर गाइडेंस वी गेट फ्रॉम द डिवाइन। और साइंटिफिकली अगर हम किसी चीज़ को एनालाइज कर सकें तो ये भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो साइंस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड आई एम ऑल्सो लाइक दैट। मैं शुरू में मम्बो जम्बो के लिए तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि नहीं, दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री टू द साइंस मेन स्ट्रीम, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसको परस्यू किया। आज करीब करीब मोर देन 20 ईयर्स मैं प्राणिक हीलिंग के साथ जुड़ा हूँ और अपने जर्नी में मैं करीब 32 ईयर्स का जर्नी है, जो हर एक चीज़ को मैंने कोशिश किया पकड़ने की और उसमें बहुत सारे कॉमन चीज़ हैं, तो कॉमन चीज़ को लेना चाहिए और बाद बाकी चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच खुशहाली। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा मैसेज दिया आज और बहुत सारे आपकी बातें, आपके एक्सपीरियंस सुन के बहुत ही अच्छा लगा। I'm feeling very blessed today, and if you are feeling the same, share it with more people. Comment about your experience as well. If you want to be a part of our podcast journey, if you think you have something to share with others which can give them light, then please contact us and comment your name and details. All the other details about Pavitra Yog, about how to contact Pavitra ji, all the details I am adding in the description, so please check out. And thank you so much for listening to us today. Thank you so much, Pavitra ji. Namaste. Thank you very much all the audience. Thank you so much.